Hello, I am Umesh Tripathi and we are learning the concepts of fundamental analysis. In this video, we are going to learn about how to analyze investable companies when it comes to the retail sector. Retail sector क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे. साथ ही साथ we will go through examples of few companies in the retail segment and we will learn how to analyze the investable companies in this particular sector. So retail sector includes those businesses which sell the goods or services डायरेक्टली टू द एंड यूजर्स. एंड यूजर्स का मतलब जो हम कंज्यूमर्स हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट्स का, उन प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्टली इन कंपनियों से खरीदते हैं जो कि रिटेल कंपनियां होती हैं. और ये कंपनियां या तो हमें ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या हम डायरेक्टली जाके इनके स्टोर से गुड्स परचेज करते हैं. सो बेसिकली द रिटेल सेक्टर कंपनीज सेल goods or services to the end customers. The retail sector company can be either organized like in case of Reliance Retail or DMart, or it can be unorganized जैसे कि हमारे लोकल किराना स्टोर्स होते थे या इनफैक्ट होते हैं. These are mostly unorganized wherein we in person go and buy their products. So when it comes to the retail sector, there are few important sub categories that we need to understand. यहाँ पे ग्रोसरी हो या अपैरल सेगमेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इवन ई कॉमर्स हो, these are सब सेगमेंट्स ऑफ द रिटेल सेक्टर. कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं. डीमार्ट, जिसे कि हम एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी कहते हैं, ये पर्टिकुलर कंपनी जो है बेसिकली इट ऑपरेट्स low cost hypermarkets in India, and Reliance Retail is basically a diversified retail presence including the grocery, fashion, electronics and much more. When it comes to Trent, it owns fashion brands like Westside and Zudio. There are mainly three types of retailing: brick and mortar, जो कि physical and traditional retail businesses होते हैं. वो होता है जहाँ पे customers इन पर्सन या फिजिकली जाकर प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं. सो दीज कैन बी बेसिकली योर सुपरमार्केट्स या आपके जो डिजिटल अप्लायंसेस के जो शॉप्स होते हैं या इवन अपैरल स्टोर्स. ई कॉमर्स रिटेलिंग इज बेसिकली ऑनलाइन, जहां पे हम अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज पे अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं एंड वी बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग ई कॉमर्स फैसिलिटीज. इसके साथ ही साथ देयर आर फ्यू ऑमनी चैनल्स जहां पे मिक्स ऑफ बोथ हमें देखने को मिलता है, यानी कि certain companies, certain businesses from the retail segment provide us brick and mortar facility as well as the e-commerce facility. ठीक है. सो भारत में अगर हम रिटेल सेक्टर की ओवरऑल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे द टोटल साइज ऑफ द रिटेल सेक्टर इन FY 2024 वाज अराउंड 85 लाख करोड़. साथ ही साथ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अराउंड 10% का रहा है. एंड व्हेन इट कम्स टू द एम्प्लॉयमेंट, it is one of the largest employers in India. Let's now talk about few leading companies of this particular sector. When it comes to the retail sector, important companies like Reliance Retail, जहाँ पे मल्टी फॉर्मेट सेगमेंट हमें देखने को मिलता है. सो बेसिकली रिलायंस स्मार्ट हो या आजियो हो, these are the few brands by Reliance Retail. DMart provides us grocery and supermarket facilities. Trent, जो कि टाटा ग्रुप का है, it comes from the apparel segment, जहां पे इनके कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि वेस्ट साइड एंड जूडियो. एंड आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कम्स फ्रॉम द अपैरल सेगमेंट wherein few brands are Pantaloons and Louis Philippe. ठीक. Now let's talk about how to analyze the companies which are part of the retail sector. So यहाँ पे अब तक हमें समझ में आ रहा है कि रिटेल सेक्टर में किन तरह की कंपनियां होती हैं और कहीं ना कहीं से ये भी समझ में आ रहा है कि what can be the business sources of these companies. So basically be it any kind of merchandise or any services or any electrical appliances or digital gadgets, through the sale of these products and services, the companies belonging to this particular sector are generating revenues. So business model and store format is what matters when it comes to the retail sector. Whether the company is online or offline or omni-channel, we have to study around these to understand the clear picture of the business model of the company. इसके साथ ही साथ revenue matrices are important when it comes to the analysis of overall this particular sector companies. तो यहाँ पे जो भी performances हैं existing stores के, वो हमें measure करना होता है. And to measure this, we use the same store sales growth parameter. So basically ये जो भी parameter है, using this parameter we analyze the performance of existing store. मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं. There is a certain company ABC. Now this ABC has 10 stores in certain city.
Now, to understand the revenue of this particular company, we have two ways. Either we can go for consolidated stores revenue, wherein we can understand about the overall revenue that is being generated by the company, or we can go store wise historical revenue analysis. तो जब हम स्टोर वाइज हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं रेवेन्यूज का, देन वी कैन अंडरस्टैंड द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ. इन दिस टर्म्स इट हेल्प्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टोर्स. तो यहाँ पे हम सेग्रीगेटेड वे में जो भी स्टोर्स हैं उनकी एनालिसिस कर सकते हैं, एंड दिस हेल्प्स अस टेकिंग वाइज डिसीजंस. इसके साथ ही साथ मार्जिन्स एंड कॉस्ट एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट मैट्रिक. यहाँ पे बेसिकली ग्रॉस मार्जिन कंपनी का क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो अगेंस्ट द रेवेन्यूज ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी कितना जनरेट कर रही है, ये एक मेजरेबल है जिससे हमें ग्रॉस मार्जिन मिलता है. इसके साथ ही साथ एबिटा मार्जिन, इट एक्चुअली हेल्प्स अस फिगर आउट द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी. इसके साथ ही साथ स्टोर एक्सपेंशन एंड द फुटप्रिंट्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी. अब यहाँ पे सर्टेन कंपनी है जो कि रिटेल सेक्टर से बिलोंग करती है, तो उसके कितने स्टोर्स हैं, किन किन सिटीज में है, डू दे हैव द प्रेजेंस इन टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज एज वेल, व्हाट आर देयर फ्यूचर प्लान्स, इन सभी की हमें एनालिसिस करनी होती है. एंड ये देखना होता है कि क्या वो वाकई में टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी एक्सपैंड कर रहे हैं या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, Zudio has expanded rapidly in tier 2 and tier 3 cities as well. So in future it might be possibility that their overall revenue increases and ultimately profit also can increase. ठीक, इसके साथ ही साथ इन्वेंट्री टर्नओवर, एन इंपॉर्टेंट रेशियो व्हेन इट कम्स टू द रिटेल सेक्टर कंपनीज एनालिसिस. सो बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कैश कन्वर्जन रेट कंपनी के पास कैसा रह रहा है. यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे जो डीमार्ट है, उनका जो इन्वेंट्री डेज है इट इज 35 डेज कंपेयर टू द 65 डेज ऑफ द पीयर्स. तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि डीमार्ट हैज अ बेटर इन्वेंट्री डेज कंपेयर टू इट्स पीयर्स. ठीक, इसके साथ ही साथ डेट एंड वर्किंग कैपिटल मैटर्स. बेसिकली वी नीड टू चेक द ओवरऑल डेट ऑफ द कंपनी व्हेन वी आर एनालाइजिंग द रिटेल सेक्टर कंपनीज, एंड ऑल्सो वी हैव टू एनालाइज द अनसस्टेनेबल डेट. इसके साथ ही साथ कस्टमर लॉयल्टी एंड ब्रांड स्ट्रेंथ मैटर्स व्हेन इट कम्स टू द रिटेल सेक्टर कंपनीज. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मोट इन द कैपिटल मार्केट सेक्टर एनालिसिस, राइट. सो रिटेल सेक्टर में भी कंपनी की ब्रांड स्ट्रेंथ क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है, इसकी स्टडी हमारे लिए मैटर करती है. एंड वी हैव टू ऑल्सो एनालाइज देयर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स एज वेल. सो रिपीट परचेज रेट हो या ओवरऑल ऐप डाउनलोड्स हो या लॉयल्टी प्रोग्राम्स हो, it all matters when it comes to the analysis of the retail sector company. इसके साथ ही साथ omni channel and digital strategy क्या है कंपनी की, ये हमारे लिए मैटर करता है. We have to basically check the adoption of digital platforms when it comes to the retail sector companies. We have to see whether the company is present in the e-commerce segment and what is the online sales percentage of the overall revenues that the company is generating. ठीक है, there are few important ratios that we need to look into when we are analyzing the retail sector companies. ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. रेवेन्यू ग्रोथ, बेसिकली रेवेन्यू ग्रोथ क्या रह रहा है पर्टिकुलर कंपनी का, रिटेल कंपनी का, ये हमारे लिए मैटर करता है. मोस्टली इट हैज टू बी 15% एंड ग्रेटर ईयर ऑन ईयर बेसिस. ये टॉप लाइन ग्रोथ इंडिकेट करता है एंड वी गेट टू नो अबाउट द मार्केट एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी. इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया, वी हैव टू ऑल्सो एनालाइज द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऑफ द कंपनी, जहां से हमें ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ की पता चलती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग stores. So the ideal benchmark for this is that same store sales growth rate has to be greater than 6 or 8%. ठीक है, इसके साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन फॉर ग्रोसरी स्टोर्स इट हैज टू बी अराउंड 6 to 8%. When it comes to the net profit margin, overall profitability after reducing the tax is net profit margin 3 to 5%, but varies by format of the retail sector company. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज द एफिशिएंसी इन मैनेजिंग अ सर्टेन स्टॉक, कि कितने दिन में वो स्टॉक जो है सेल उसकी हो जा रही है. इट हैज टू बी अराउंड 5x and greater. Return on capital employed has to be greater than 15%. Return on equity has to be greater than 15%. इसके साथ ही साथ डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो वो बेहतर डेट टू इक्विटी रेशियो माना जाता है.
व्हेन इट कम्स टू द फुटफॉल ग्रोथ, फुटफॉल ग्रोथ का मतलब होता है कि कस्टमर ट्रैफिक ग्रोथ जो है, जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं स्टोर्स पे, व्हेन इट इज ब्रिक एंड मोर्टार टाइप स्टोर्स, उनका फुटफॉल कितना ग्रो कर रहा है, इसकी स्टडी भी हमें करनी होती है। सो बेसिकली फुटफॉल ग्रोथ से हमें पता चलता है कि कितने कस्टमर्स आ रहे हैं उस सर्टेन स्टोर पर और उसकी ग्रोथ क्या रह रही है। इट हैज टू बी पॉजिटिव ईयर ओवर ईयर। एंड स्टोर काउंट एक्सपेंशन, द नंबर ऑफ स्टोर्स दैट पर्टिकुलर रिटेल सेक्टर कंपनी और रिटेल सेक्टर चेन हैज, व्हाट इज द ओवरऑल नेटवर्क ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स दैट द कंपनी हैज। ईयर ओवर ईयर इसकी कंसिस्टेंसी एंड एडिशन ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स इज व्हाट मैटर्स व्हेन इट कम्स टू द एनालिसिस। इसके साथ ही साथ डिजिटल सेल्स परसेंटेज ऑफ द टोटल ओवरऑल सेल्स या रेवेन्यू, ये ओमनी चैनल स्ट्रेंथ हमें बताता है किसी भी सर्टेन कंपनी की। सो ऑल इन ऑल जो रिटेल सेगमेंट कंपनीज हैं या रिटेल सेक्टर की जो भी कंपनीज हैं, दे ऑफर अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पोटेंशियल व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। वी हैव टू फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, मार्जिन and overall stability of the company when it comes to the analysis of the retail sector companies. Companies with strong unit economics and adaptable models are strong candidates in the retail sector, and we have to keep an eye on the digital disruption and changing consumer behavior when it comes to the overall retail sector companies investment decision making. इस कोर्स में इतना ही। Hope you liked the course and gained some fruitful knowledge which can help you in overall investing decision making. इस वीडियो में इतना ही। See you in the next video. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.